صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا محمود اسد مدنی نے ایران کے سپریم لیڈر خامنائی کی شہادت کے بعد ایک بڑا بیان جاری کیا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ باقاعدہ حضرت مولانا محمود مدنی نے اپنا پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے اس تعلق سے یہ بات لکھی ہے کہ نئی دلی 2 مارچ 2026 جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود اسد مدنی نے مشرقی وسطی کی انتہائی دھماکہ خیز اور تشویشناک صورتحال پر گہری فکر و اضطراب کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے جارحانہ اور اشتعال انگیز اقدامات نے نہ صرف خطے کے امن کو تہ و بالا کر دیا ہے بلکہ عالمی استحکام کو بھی سنگین خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ حضرت مولانا محمود اسد مدنی نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور ان کے اہل خانہ و رفقا کے جاں بحق ہونے پر گہرے صدمے اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی ملک کی قیادت کو نشانہ بنانا بین الاقوامی اصولوں اور معاہدوں کے خلاف ہے اور دنیا کو دور بربریت کی طرف دھکیلنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے صاف طور پر یہ بات کہی ہے کہ جمعیت علماء ہند ایران کی عوام کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ساتھ ہی مولانا محمود مدنی نے ایران کی جانب سے خطے کے دیگر ممالک میں ہونے والی کارروائیوں پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال فوری طور پر امن کے قیام اور اتحاد و ہم آہنگی کی متقاضی ہے۔ حضرت مولانا محمود مدنی نے صاف طور پر واضح کیا ہے کہ کسی بھی سیاسی یا عالمی تنازع کا حل قتل و خون ریزی نہیں ہو سکتا اور طاقت کے زور پر اپنی بات منانے کی کوششیں نفرت، انتقام اور انسانی المیوں کو جنم دیتی ہے۔ حضرت مولانا محمود مدنی نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری جنگ بندی، کشیدگی کے خاتمے اور بامعنی سفارتی مذاکرات کے لیے فعال اور مؤثر کردار ادا کرے تاکہ خطہ مزید تباہی سے محفوظ رہ سکے۔ اگر عالمی طاقتوں نے فوری طور پر دانش مندی، انصاف اور سفارتی تدبر کا مظاہرہ نہ کیا تو اس کے منفی اثرات کسی خطے تک محدود نہیں رہیں گے۔ آگے حضرت مولانا محمود اسد مدنی کہتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند ہر اس قدم کی مخالفت کرتی ہے جو دنیا کو انسانیت مٹانے والی جنگ و بد امنی کی طرف دھکیلتا ہو، اس لیے فوری جنگ بندی اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کا پرامن حل تلاش کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ وہیں دوستو، اب آئیے دوسری خبر کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات، UAE، بحرین، سعودی عرب، عمان، قطر اور کویت نے ایک ساتھ مل کر اب ایران کو ہی دھمکی دے ڈالی ہے۔ خلیج تعاون کونسل JCC کی اتوار کو ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ میں ایرانی حملوں سے ہونے والے نقصان پر بات چیت کی گئی ہے۔ GCC کا کہنا ہے کہ ایران نے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا، وہی ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، نہ کہ کسی عرب ملک کو۔ GCC میں متحدہ عرب امارات، UAE، بحرین، سعودی عرب، عمان، قطر اور کویت تمام ملک شامل ہوتے ہیں۔ ان تمام ممالک نے اب ایران کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اور ان تمام ملکوں نے ایران کو یہ بھی خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا، چاہے حملہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ حالانکہ ان تمام ملکوں کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ کس طرح 28 فروری 2026 کو جو کچھ ہوا وہ صرف ایک حملہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر اچانک ایران پر بڑا حملہ کیا اور اسی حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی، پوتا، داماد اور بہو بھی شہید ہوئے۔ اس خبر نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہمارے ملک بھارت میں بھی کئی جگہوں پر احتجاج دیکھنے کو ملے۔ اس واقعے نے پورے مشرقی وسطی کی صورتحال بدل دی اور لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ اب معاملہ صرف باتوں اور دھمکیوں تک محدود نہیں رہ سکتا ہے، اب ایک بڑی جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں لگتا کہ خامنائی کی غیر موجودگی میں ایران ہار مان لے گا، کیونکہ ایران نے بھی خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل حملے کیے ہیں۔ پہلے آئیے یہ جان لیتے ہیں کہ آخرکار سپریم لیڈر کو کیسے نشانہ بنایا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ امریکی فوج نے 28 فروری 2026 کو ایک آپریشن شروع کیا جس کا نام ایپک فیوری رکھا گیا۔ امریکہ کے مطابق یہ حملہ رات 1:15 بجے شروع ہوتا ہے اور اس میں ایران کے فوجی کمانڈر
सीनियर एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने के मकामात और फौजी हवाई अड्डों को सबसे पहले निशाना बनाया गया। सिर्फ 1 घंटे के अंदर जमीन, फिजा और समंदर तीनों तरफ से जदीद हथियार इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा पहली बार सस्ते ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया जो सिर्फ धमाके के लिए भेजे जाते हैं। और दूसरी तरफ इजराइल ने भी ईरान के ऊपर चारों तरफ से हमला किया और उसे रॉइंग लॉइन का नाम दिया। यह ईरान के पुराने झंडे से लिया गया नाम था जो इस्लामी इनकलाब से पहले इस्तेमाल होता था। इससे इजराइल ये पैगाम देना चाहता था कि वो ईरान में हुकूमत बदलना चाहता है। इजराइल के मुताबिक इसकी तकरीबन 200 जंगी जहाजों ने एक साथ परवाज की और ईरान के 500 से ज्यादा मकामात पर बमबारी की। उसने भी एयर डिफेंस, मिसाइल लॉन्चिंग जगहों को निशाना बनाया। इजराइल ने कहा है कि वो कई महीने से अमेरिका के साथ मिलकर इस हमले की तैयारी कर रहा था। हथियारों की बात करें तो अमेरिका ने लंबे फासले तक वॉर करने वाले टॉम हॉक मिसाइल, जदीद जंगी जहाज और ड्रोन इस्तेमाल किए। टॉम हॉक मिसाइल बहुत ज्यादा दुरुस्त निशाना लगाती है। यह हमला सिर्फ फिजाई बमबारी नहीं था बल्कि समंदर से मिसाइल, आसमान से जिहाद और जमीन पर ड्रोन सब शामिल थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि खामनाई की मौत कैसे हुई। सबसे पहले यह दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया। उन्होंने 28 फरवरी की शाम को सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरानी सुप्रीम लीडर मारे जा चुके हैं। उस वक्त ईरान की तरफ से कोई सरकारी तस्दीक नहीं आई थी। कुछ रिपोर्टों में यह बात भी कही गई थी कि वो जिंदा है, लेकिन बाद में रॉयटर्स के एक इजरायली अफसर ने बताया कि यह खबर दुरुस्त है। फिर आहिस्ता आहिस्ता यह बात सच होती चली गई और रिपोर्ट के मुताबिक हमले के वक्त खामनाई अपने करीबी साथियों के साथ एक खुफिया जगह पर मीटिंग कर रहे थे। जैसे ही यह मालूमात सच हुई, मिशन शुरू कर दिया गया। अमेरिका और इजराइल ने पहले ही तय कर लिया था कि पहले हमला सुप्रीम लीडर पर ही किया जाएगा, क्योंकि अगर कहीं और हमला होता है तो वो महफूज जगह पर चले जाएंगे। बाद में तस्वीर में भी देखा गया कि तेहरान के सबसे महफूज इलाकों में सबसे पहले हमला किया गया था। सैटेलाइट तस्वीरों में वो जगह मुकम्मल तौर पर तबाह नजर आती है कि उसका मतलब है कि सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने के लिए कई सिमतों से हमला किया गया था। उनकी सरगर्मियों, खास तौर पर मीटिंग्स पर नजर रखी गई और उनके महफूज इलाके को निशाना बनाया गया। जब से सुप्रीम लीडर की मौत की खबर सामने आई, पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। कुछ लोग अब तक यकीन करने को तैयार नहीं है कि वो अब हमारे दरमियान नहीं रहे। हकीकत यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर एक हुक्म पर दुनिया भर के बहुत से शिया अपनी जान देने को तैयार रहते थे। उनकी बात को आखिरी फैसला समझा जाता था। उनके जाने से पूरा ईरानी निजाम हिलकर रह गया। पूरे मुल्क में इमरजेंसी की सूरत हाल है। अखबार गार्डियन ने ईरानी इदारों के हवाले से बताया कि 28 फरवरी के हमलों में 2011 अफराद हलाक हुए और 747 जख्मी हुए। इसी दौरान सफारती सरगर्मियां भी तेज हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने हंगामी इजलास बुलाया और इंतवा गुतेरेस ने फौरी तौर पर हमला रोकने की अपील की। अपने दिफा में अमेरिका और इजराइल ने एटमी हथियारों के खतरे का हवाला दिया, जबकि ईरान ने उसे जंगी जुर्म करार दिया है। इसके बाद, इस हमले के बाद मशरक़ी वुस्ता में कई फिजाई रास्ते बंद हो गए। कई एयरलाइंस ने तल अबीब, बेरूत, दुबई और दोहा जाने वाली परवाजें रोक दी। यानी जंग का असर सिर्फ मैदान या जंग तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की रफ्तार को सुस्त बना देता है। आगे क्या होगा ये वक्त ही बताएगा, लेकिन ईरान के रवैये से नहीं लगता कि वो जल्द अमन मुआहिदे के मूड में है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि आखिर अमेरिका और इजराइल ने खामनाई को निशाना क्यों बनाया। खामनाई को समझने के लिए पहले ईरान को समझना बहुत जरूरी है। किसी मुल्क की सियासत संभालना आसान नहीं होता, खास तौर पर उस मुल्क के जिसे तबाह करने के पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें शामिल हो। इस्लामी इनकलाब के बाद 1989 से 2026 तक ईरान में बहुत कुछ बदला, लेकिन असल ताकत एक ही मरकज पर कायम रही। बाहर की दुनिया ईरान को एक मजहबी हुकूमत के तौर पर देखती रही, जिसकी बुनियाद फौजी ताकत पर थी। खामनाई को ऐसा रहनुमा समझा जाता था जो ईरान को अमेरिका के मुकाबले में मजबूत बनाते रहे, मगरबी एशिया में अपना असर बढ़ाते रहे और अंदरूनी बगावतों को दबाते रहे।
उन्होंने एटमी प्रोग्राम पर भी काम जारी रखा था ताकि मुल्क को मजीद ताकतवर बनाया जा सके। इनकलाब के बाद जब आयतुल्लाह खुमैनी ने इख्तिदार संभाला तो उन्होंने तय किया कि ईरान अपनी मर्जी से चलेगा, ना कि अमेरिका के इशारों पर। इसके बाद खामनाई ने भी यही पॉलिसी जारी रखी। उन्होंने अमेरिका को बड़ा शैतान कहा और इजराइल को बड़ा दुश्मन करार दिया। इसीलिए उन्होंने मिसाइल प्रोग्राम और इत्तिहादी गिरोह को मजबूत किया, जैसे हिजबुल्लाह और हमास। इसी वजह से इजराइल और ईरान को अपने वजूद के लिए खतरा समझा जाता रहा। खामनाई के दौर में IRGC बहुत मजबूत हुई। उनके ताउन से कायम सुलेमानी ने कई महजों पर काम किया और मुजाहमती इत्तिहाद को ताकत दी। इसीलिए पहले बगदाद में सुलेमानी को निशाना बनाया गया और बाद में खामनाई को यह भी हकीकत है कि ईरान में सब लोग खामनाई से खुश नहीं थे। 2022 में महसमा अमीनी के वाक़ई के बाद बड़े तौर पर मुजाहिरे हुए, लेकिन हुकूमत ने उन्हें काबू में रखा। अमेरिका को यह एहसास हो गया था कि जब तक खामनाई जिंदा है ईरान को कमजोर नहीं किया जा सकता है। वो खुलेआम कहते थे कि एटमी हथियार गैर इस्लामी है, लेकिन सब जानते थे कि ईरान एटमी ताकत बनाना चाहता है। ओबामा के दौर में होने वाले मुआहदे के बाद ये प्रोग्राम सुस्त हो गया था, लेकिन जब ट्रंप आए तो उन्होंने मुआहदा खत्म कर दिया और पाबंदियां भी लगा दी। जिसके बाद ईरान ने दोबारा काम को तेज कर दिया और 2025 तक ईरान एटमी हथियार बनाने के करीब पहुंच गया था। असल तशवीश खामनाई नहीं बल्कि पूरा निजाम था जो फैसला करता था, और इस निजाम को मरकज वही थे। ताज़ा रिपोर्ट में बैनुल अक़वामी एटमी एजेंसी ने बताया कि अस्फ़हान की सुरंगों में बड़ी मिकदार में यूरेनियम रखा गया है, जिससे तकरीबन 10 एटमी बम बनाए जा सकते हैं। जब ईरान ने मुआयना करने से इनकार किया तो शक और ज्यादा बढ़ गया। ये सब बातें अमेरिका और इजराइल के लिए खतरे की घंटी बन गई और इसके बाद हमले का फैसला किया गया। और इसी वजह से ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया, क्योंकि इन दोनों ममालिक को डर था कि अगर ईरान ने एटमी बम बना लिया तो हमारे मुल्क को बहुत बड़ा खतरा लाहिक हो सकता है। इसलिए अमेरिका और इजराइल ने एक साथ मिलकर सबसे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई को शहीद किया। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर ये कुछ खबरें देखी, जिसमें से आप सब लोगों ने जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना महमूद मदनी का भी बयान देखा, जिन्होंने उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि किसी हुकूमत के हुक्मरान पर हमला करना, उसको शहीद करना, यह इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है और इस तरह हम इसकी मजम्मत करते हैं। वहीं आपने यह भी देखा कि किस तरह ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई को निशाना बनाया गया और क्या वजह बनी। हमने आपको पूरी डिटेल में समझाया कि कहां से मामला शुरू होता है और क्यों हमला किया जाता है और इसकी वजह क्या है। अगर आप सब लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।